کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے۔ ناظرین آداب، عالمی سمے پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عمران خان اور اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں اپنا خصوصی پروگرام رنگ کشمیر۔ کشمیر کی خوبصورت وادی ہمیشہ سے ملکی اور غیر ملکی ٹورسٹوں کا پسندیدہ مقام رہی ہے۔ شری نگر میں ڈل جھیل، نشاد باغ، شالیمار گارڈن کے علاوہ گلمرگ، سونمرگ، پہلگام اور اننت ناگ سیر و سیاحت کے پاپولر اسپاٹ ہیں، لیکن آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک نئے اور منفرد مقام پر جس کی انٹچ بیوٹی ابھی تک لوگوں کی نظر سے اوجھل رہی ہے۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہم آج بات کریں گے جموں کشمیر کے کچھ قلمکاروں سے، تو آئیے شروع کرتے ہیں رنگ کشمیر۔ موسم بے مثال بے نظیر ہے، یہ کشمیر ہے، یہ کشمیر ہے۔ گر فردوست بروئے زمیں است، ہمی است، ہمی است، ہمی است۔ توش میدان کی بے مثال قدرتی خوبصورتی کو دیکھ کر دل یہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ یقیناً مغل حکمراں کا اس وادی سے جب گزر ہوا ہوگا تو اس نے کشمیر کو ارض جنت کہا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ توش میدان مغل بادشاہ کے کارواں کا پڑاؤ تھا اور یہ پرسکون وادی کبھی شاہی مصرف میں تھی۔ قدرت کے حسن کی کاریگری آج بھی اس دل فریب اور پرسکون نظاروں سے عیاں ہو رہی ہے۔ ایک طرف کا ٹھاٹے مارتا ہوا شور تو دوسری طرف کچی سڑک کے ساتھ ساتھ چلتی بلند پہاڑیوں کا سلسلہ اور سرسبز جنگلات کسی خواب کی مانند ہیں۔ پھر اس حسین وادی میں سیر کرنے کو بھلا دل کیوں نہ چاہے گا۔ پہلگام اور یوسمرگ، سونمرگ میں گئی تھی بہت بار، لیکن ایسی جگہ میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جب برف گرتے ہیں نا، پھر مارچ اپریل میں اٹھتے ہیں، پھر ہم لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ کب برف پگھلے گی، ہم توس میدان جائیں گے، لیکن ایسی جگہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ بہت اچھا خوبصورت ہے، لیکن یہاں بہت بیوٹیفل ہے۔ جہاں انسان بیٹھتا ہے وہاں بہت اچھا لگتا ہے۔ توش میدان پہاڑوں سے گھری ہوئی کشکول نما وادی ہے۔ ماضی میں اسے شاہی میدان بھی کہا جاتا تھا، جہاں قدرت کی کمال کی فنکاری اور کارسازی کا برملا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں وسیع العریض مخملی مرگ یعنی گھاس کے میدان رونق بخش بھی ہیں اور صحت افزا بھی ہیں۔ توش میدان محض ایک مرگ نہیں بلکہ دلکش اور فرحت افزا کئی مرگوں کا سلسلہ ہے۔ ایک طرف برف سے ڈھکی فلک بوس چوٹیاں تو دوسری جانب قداور دیودار، چیڑ اور کیلے کے درخت ایک معطل آب و ہوا پیدا کر رہے ہیں، اور پھر کھنکتا ہوا یہ نالا سکھناگ جس کے بہاؤ کا شور فضا میں موسیقیات پیدا کر دیتا ہے۔ بہت خوبصورت جگہ ہے ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں ایک ہی جگہ خوبصورت ہے، وہ ہے ہمارا توسا میدان۔ لیکن کسی بھی ایم ایل اے، منسٹر، کسی کو کوئی بھی یہاں پہنچتا ہی نہیں ہے، جبکہ ہمارا ہے نہیں کوئی، یہاں کا ایم ایل اے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو ہمیں یہاں کسی کو لائے، ٹورسٹ کو لائے یا کسی فارنر کو لائے، کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ اس سے پہلے یہاں فائرنگ رینج تھا تو لوگ ڈر کے یہاں آتے تھے، ڈر کے مارے واپس ہی چلے جاتے تھے، آدھے راستے میں کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ آج جب سے فائرنگ بند ہو گئی تب سے ہم کھلے میں آتے ہیں، گھومتے ہیں، ناچتے ہیں، بہت مزہ آیا۔ 1954 سے لے کر سال رواں کے ماہ اپریل تک یہ جنت نما خطہ حفاظتی افواج کی تربیتی مشقوں کے لیے بطور فائرنگ رینج استعمال ہوتا رہا ہے۔ بالآخر اپریل 2014 میں ریاستی حکومت اور فوج کی مشترکہ کوششوں سے توش میدان کو فائرنگ رینج کے طور پر استعمال ہونے سے مربر کر دیا گیا۔ 1954 سے لے کر توش میدان اور گرد و نواح میں رہنے والے جن لوگوں نے مشقی فائرنگ کے دوران سال ہا سال جان اور مال کی قربانیاں دیں، حکومت اور فوج کے اس فیصلے سے وہ لوگ اب بے حد خوش ہیں۔ دیر آید درست آید، اب تک بہت کچھ گنوا دیا۔ تقریباً 65 افراد فائرنگ مشقوں کے دوران ہلاک ہو گئے اور 150 سے زیادہ جسمانی طور پر مفلوج ہیں۔ اس میدان سے ملحق علاقوں کی آبادی جو کئی دہائیوں سے وحشت اور خوف کے سائے میں جی رہی تھی، اب اس بستی کو سیر و سیاحت کی سرزمین بنانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر سرکار کے محکمہ سیاحت اور سماجی کارکنوں نے توش میدان کو ٹورزم میپ پر لانے کی بھرپور صحیح کی ہے۔
ان کی پین تھی، ان کی بہت خواہش تھی کہ یہاں فائرنگ بند ہو، وہ تو انشاءاللہ ہو گئی. لیکن ایک بہت ہی جو میں یہاں آپ کے ذریعے دینا چاہتا ہوں، میڈیا نے جو ہماری آواز کو اجاگر کیا، ورنہ یہ 50 سال سے اس آواز کو نکال رہے تھے، آواز دے رہے تھے کہ ہمیں اس مصیبت سے بچاؤ، اور میڈیا نے پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے جو ہمارا تعاون کیا ہے تو وہ بالکل سراہنے کے بالکل قابل ہے. ہم نے سارے ڈاکومنٹس نکالے تو ہمیں پتا چلا کہ 18 اپریل 2014 کو ریلیز ختم ہو رہا ہے. تو اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ بھی ہم نے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایریا میں سینسٹائزیشن کی. سب سے پہلے ہم نے سرپنچ کو لایا، آر ٹی ایکٹیوسٹس کو لایا، اور بھی کچھ سول رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، تو ان کے ساتھ ایک بات چیت ہوئی. توش میدان ایک زمین کے وسیع رقبے میں پھیلا ہوا ہے. اس میں کئی اور مرگیں واقع ہیں جن کی اپنی تاریخ اہمیت ہے. ہر مرگ کا شاندار ماضی رہا ہے. ان میں گھٹ مارگ، دمدمہ یا بادشاہ مرگ، چوکی کشیپ ناگ اور کستور شہر وغیرہ قابل ذکر ہیں. پرانے زمانے میں 2 بادشاہوں کے درمیان گھٹ مرگ کے مقام پر ہی جنگ ہوئی تھی. اسی طرح دمدمہ ایک اور مرگ ہے جسے بادشاہ مرگ اس لیے کہتے ہیں کہ قدیم زمانے میں راجہ مہاراجہ اس مقام پر اپنی نشستیں جماتے تھے، تقریبات منعقد کرتے تھے. آگے اونچے ٹیلے پر ایک جگہ ہے جہاں اس زمانے میں فوجی چوکی ہوا کرتی تھی. آج بھی اس جگہ کو چوکی ہی کہتے ہیں. شہر کا بازار جہاں لوگ ضروریات زندگی کی چیزیں خریدا کرتے تھے. ایک اور ٹیلا ہے جسے گجر ٹانٹ کہتے ہیں، یعنی چنگی وصولی. برے صغیر کے ممالک کے درمیان ہونے والی تجارت کے لیے جو تاجر کشمیر میں داخل ہوتے تھے ان سے اسی جگہ پر ٹیکس وصول کیا جاتا تھا. اسی طرح سے پرانے شہر میں روہن پتھری ہے. کشمیری زبان میں لہسن کو روہن کہا جاتا ہے. اس جگہ آج بھی لہسن کی بڑی کاشتکاری ہوتی ہے. ایک اور جگہ ہے کشیپ ناگ جس کا بگڑا ہوا نام ہے شاپ ناگ. مانا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر کشیپ رشی ریاضت کرتے تھے. کشیپ ناگ پر ایک بڑا چشمہ ہے جس کا پانی سورج کنال کے ذریعے توش میدان کے 19 گاؤں کو سیراب کرتا ہے. تھوڑا آگے جا کر پتھروں کی ایک باڑی ہے جسے کستور شہر کے نام سے جانا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ایک گلیشیئر ہے جو گرمیوں میں پگھل کر سکھناک کے پانی میں اضافہ کرتا ہے. قدرت کا یہ سارا نظام انسانی زندگی کو تازہ دم رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہے، مگر خود انسانوں نے ہی اسے تباہ کر دیا ہے. کشمیر ہماری جو ہے اس وقت سری نگر سٹی ہے یا اس سے ملحق علاقے ہیں، یہ پانی سے بھرے ہوئے جھیل تھے اور توشا میدان میں بستی تھی. پرانے زمانے میں جب یہاں پہ اصلی بستی ہوا کرتی تھی اور 2 بادشاہوں کے درمیان آپس میں لڑائی چھڑ گئی اور وہ لڑائی کی جگہ یہی ہے. اس کو اس لیے گٹ مرگ کہتے ہیں. آج بھی ہم کہیں پہ اگر جھگڑا ہو جائے تو کہتے ہیں کشمیری میں وہ گٹ، وہ اسی کے نام سے اس کو گٹ مرگ کہتے ہیں. یہاں ایک علاقہ ہے وتدار. وت مطلب راستہ اور دار مطلب دھار، یعنی دھار پہ چلنے والا راستہ. کہا جاتا ہے کہ وتدار پہنچ کر مغل بادشاہ پوچھ سے کشمیر سفر کے بعد کچھ دیر کے لیے سستایا کرتے تھے. یہ ان کا پڑاؤ تھا. اس جگہ پانی کے 2 چشمے اغل بغل ہیں، ایک ٹھنڈا اور ایک گرم پانی کا چشمہ جسے تاتا پانی کہا جاتا ہے. تاتا پانی کے چشموں میں ایسی خاصیت ہے کہ خارش کھجلی جیسی جلدی امراض میں مبتلا مریض چشمے میں ایک ڈبکی لگا کے ان بیماریوں سے نجات حاصل کر لیتے ہیں. جو ہمارا کشمیر ہے یا تو یہ ندی نالوں کے لیے، جھیلوں کے لیے جانا جاتا ہے یا ہائی آلٹیچیوڈ میڈوز کے ساتھ جانا جاتا ہے. جیسے گلمرگ کا آپ دیکھیں تو گلمرگ کا میڈو بہت ہی پاپولر ہے، پوری دنیا میں اس کا نام ہے اب. اور پہلگام کا جو سٹریم ہے اس کی اٹریکشن میں ہی سب لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس ٹھنڈے پانی کو انجوائے کرتے ہیں. اس علاقے میں کئی جگہ پر مغلوں کی تعمیرات کے آثار ملتے ہیں. مقامی لوگوں کے مطابق یہاں دمدمہ میں ایک 7 منزلہ عمارت تعمیر کرائی گئی تھی جس کے 4 منزلہ آثار آج بھی موجود ہیں. اور اس جگہ منہدم کھنڈرات بزبان خود اپنے ماضی کی داستان بیان کر رہے ہیں. مانا جاتا ہے ہسٹوریکلی توش میدان جو تھا یہ مغلوں کا پڑاؤ تھا. اور جب ہسٹری کشمیر کی پیچھے سے دیکھیں تو جب یہاں بہت پانی بھرا ہوا تھا تب بھی وہاں بستی کے ریمینز ملے ہیں اور یہ تب بھی ایک شہر کی طرح بسا گیا ہے. اور ان کے جو نام ہیں، ان کے وادیوں کے نام جو ہیں، کٹ مرگ کا نام میں نے سنا ہے، اسی طرح سے ہم نے ایگزٹ کا نام سنا ہے وہاں پہ، یا شاہی میدان سنا ہے. شاہی میدان کا مطلب جہاں شاہ رہتے ہوں تو وہاں بادشاہ رہتے ہوں گے.
तोश मैदान की पहाड़ियों और जंगलात में नायाब जड़ी बूटियों का खजाना छिपा है, जिनकी तिब्बी अहमियत है। माहिरीन का कहना है कि कश्मीर हुकूमत अब तक वादी की कुदरती खूबसूरती को बतौर टूरिस्ट स्पॉट इस्तेमाल करती रही है, लेकिन केरल की तरह हर्बल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर अगर तोश मैदान वैली को प्रोजेक्ट किया जाता है तो कश्मीर में सालाना आने वाले सयाहों की तादाद 25 लाख की बजाय 1 करोड़ हो सकती है। साथ ही सिक्किम विलेज टूरिज्म की तरह तोश मैदान से मुतासिल गांवों को तैयार किया जा सकता है। दोनों ही सूरतों में रियासत की मईशत के लिए यह बेहतर होगा और यहाँ के मुकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो अरसे से गुर्बत और महरूमी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ की इकोनॉमी है, मैं चाहता हूँ जो इन्होंने जो इस एरिया की 50 साल की सफरिंग है उसका इनको एक कंपनसेशन मिले, और इनका वाहिद कंपनसेशन अगर कुछ है वो है यहाँ इस एरिया को, इस खूबसूरत तरीन एरिया को टूरिज्म के लिए एक्सप्लोर करें, इसकी मार्केटिंग करें। लेकिन हम चाहते हैं इस एरिया को गुलमर्ग और पहलगाम की तरह सीमेंट बैंकरों में तब्दील ना करें, बल्कि रूरल टूरिज्म और प्योर इको टूरिज्म की बुनियाद पर इस एरिया को डेवलप किया जाए। गुज़िश्ता दिनों तोश मैदान में एक जश्न मुनाकिद हुआ, जिसमें यहाँ के मुकामी लोगों के अलावा बाहर से आने वालों ने भी शिरकत की। इस मौके पर कश्मीरी पकवानों का खास एहतमाम किया गया था। मेहमानों का इस्तकबाल खास कश्मीरी रिवायती मौसीकी के साथ किया गया। अलबत्ता यहाँ पहुँचने के लिए अभी रास्ते दुश्वार हैं, लेकिन हौसले बुलंद हैं तो जंगल में मंगल होते भी देर नहीं लगेगी। पहली तो यहाँ जो शांति है, किसी भी जगह जाए ना तो खाली भीड़ भाड़ होती है और शोर होता है, यहाँ कुछ वैसा नहीं है। मैं हर किसी से यही कहना चाहूंगी, जो यहाँ नहीं आया उसको यहाँ आना चाहिए। यहाँ कुछ खास है, यहाँ कुछ अलग है। अगर हुकूमत की नीयत साफ रही तो उसका ताउन भी मिलेगा, और ये मंसूबा जो महकमा सयाहत, तोश मैदान बचाओ कमेटी और इंसानी हुकूक के लिए काम कर रहे हैं, समाजी कारकुनों के मुश्तरका ताउन से सामने आया है, ये यकीनन कश्मीरी अवाम के लिए सूदबंद साबित होगा। रंगे कश्मीर में अभी हम बात कर रहे थे तोश मैदान की, जहां से फौज की फायरिंग रेंज मुंतकिल कर दी गई है और जल्द ही ये जगह टूरिज्म स्पॉट, टूरिज्म मैप पर एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरेगा। यहां लेते हैं एक हम छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कश्मीर में अदबी तख्लीक की सूरत हाल की। आप देखते रहिए रंगे कश्मीर। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। हौले हौले से केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा। देशवासियों, अगर बैंक में खाता नहीं है तो आज ही नजदीकी बैंक शाखा या शिविर में या बैंक मित्र से संपर्क करें। बढ़ते जा। मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रंगे कश्मीर। नाज़रीन, हमारी आज की बहस का मौजू है जम्मू कश्मीर की समाजी जिंदगी में अदब की अहमियत और तख्लीककारों की सूरत हाल। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कुछ कलमकारों से। तो आइए शुरू करते हैं गुफ्तगू का सिलसिला। कश्मीर किसी तारुफ का मोहताज नहीं, जहां यहाँ पे चप्पे चप्पे पे खूबसूरती बिखरी है, और वहीं इस खूबसूरती को लफ्जों में, पेंटिंग्स में और कहानियों में डालने वाले कलमकार भी मौजूद है। और जहां इन कलमकारों ने
दुनिया भर में नाम कमाया है। तो आज हम इन्हीं कलमकारों के साथ इनकी ज़बानी सुनते हैं, इनकी कहानी, और सुनते हैं कि कहाँ है कश्मीर का अदब। तो शुरू करूंगा नसीमा जी से। नसीमा शिफाई जी हमारे साथ है, तो पहले इनसे ही जानना चाहूंगा। नसीमा जी, आपका दौर जो था तो इल्म अदब के हवाले से कैसा था, और आप आज कैसे देख रहे हैं? दौर तो मुझे लगता है उन दिनों ज्यादा इतना खुल के नहीं लिखते थे, खुल के नहीं आते थे बाहर। अगर लिखा भी किसी ने तो अपने पास रख दिया। खासतौर पे मैं खवातीन की बात करती हूँ, तो मुझे नहीं ना, कॉलेज मैगजीन से बाहर हम लोग नहीं आए। हमसे जो पहले वाले थे, मतलब जनरेशन, उन्होंने नहीं किया। अगर लिखा अपने पास रखा, या फिर अगर शादी हो गई तो लड़कों में तो मर्दों में था, क्योंकि प्ले राइट भी थे, ड्रामे रेडियो के लिखते थे, टीवी तो था नहीं उन दिनों, और वो डायरेक्शन भी उनका होता था, प्रोड्यूसर भी वो खुद ही होते थे। और लड़कियों का तो यही था कि जब तक कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, उससे आगे नहीं थे। लड़के लिखते थे और शायद कहीं कहीं पे पढ़ते भी थे, प्रेजेंट भी करते थे। मुझे उसका इल्म नहीं, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है, मेरी जनरेशन में जब मैंने शुरू किया लिखना, मेरे साथ भी कुछ लोग थे, लेकिन एक शमला जी थी मुझसे पहले, शमला मुफ्ती मरहुमा, और ताज बेगम रिंजू थी। उन्होंने वो भी कहानियां लिखती थी, ड्रामे शमला जी लिखती थी, करवाती थी स्टेज अपने कॉलेज में। बाहर मैंने कहीं नहीं देखा। तो इस तरह से एक पर्देदारी थी इस एक चीज के लिए। अगर पेंटिंग भी की तो अपने पास रखी, और फिर शादी करके दूसरे घर में चली गई। ये चलन नहीं था। हमारा सोशल सेटअप ऐसा था कि सब कुछ कर लो, लेकिन बाहर नहीं जा सकती थी। जैसे फिर जब मैं आई तो ये नेचुरली बुजुर्ग थे, बड़े, बहुत बड़े नाम थे उर्दू अदब के हवाले से, कश्मीरी शायरी के हवाले से। मैं आई तो मैं पहली थी, और थोड़ा सा मुश्किल भी मुझे उसका सामना करना। ऐसा मुश्किल नहीं कि घर की तरफ से या कहीं पे, लेकिन बहुत बड़ी बात लगती थी ये कि ये मुशायरे में है, लाइव मुशायरा जा रहा है, तो उसमें एक लड़की भी है। तो हजम करते करते ही हजम हुई मैं लोगों को, तो एक चलन चल पड़ा। फिर काफी लोग आ गए, काफी लड़कियां आ गई लड़कों की। तो अब तो फिर उन दिनों सुनते थे कि होते हैं, मतलब महफिल होती है। मैंने रेडियो से अलग नहीं देखा। हाँ, ऑल इंडिया मुशायरा होता था यहाँ, जिसमें मुल्क भर के शौरा आते थे। मैं भी गई हूँ, मैंने भी देखा कि एक्साइटमेंट एक होता था। यूजुअली होता था टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के ऊपर एक हॉल था, वहां पे होता था। तो वो भी एक देखने की चीज, जैसे आप लोग डिफरेंट चीजों में एंजॉय करते थे, हम भी वो चीज, वो एक इवेंट होता था। हमारे टाइम पे जश्न तमसील होता था रेडियो का, और जिसमें ड्रामों का एक सिलसिला चल पड़ता था, 15 दिन का होता था। और जैसे आप आज सीरियल देखते हो, वैसे ही हमारे लिए वो ड्रामे आते थे, सीरियल्स आते थे, कश्मीरी में भी, उर्दू में भी। तो वो एक अलग दुनिया थी। जी, जैसा इनका कहना है कि उस टाइम पे काफी मुश्किलात थी, लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। लेकिन अभी भी कहीं ऐसा है कि खुल के नहीं, जो कलमकार है वो अपने जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और कहते हैं कि समाज का आईनादार एक कलमकार होता है। और हमारे साथ यहाँ पे ताहा है। ताहा पेशे से तो आर्किटेक्ट है, लेकिन साथ में लिखते भी है, शायरी भी करते हैं और पेंटिंग भी करते हैं। इनसे जानते हैं कि इनका जो सफर है वो उस सफर को कैसे देखते हैं। जी, हेलो एवरीबॉडी। नहीं, मैं ये इस बात से सहमत नहीं हूं कि आजकल के जमाने में वी डोंट हैव सच लिबर्टी। आई गेस वी हैव हैड हमारे साथ इस टाइम सदफ मैम भी हैं, जो खुद एक पेंटर हैं। आजकल की जो जनरेशन है उनके पास खुली छूट है, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। जैसा आपने जिक्र किया कि मैं पेशे से तो एक मेमार हूं, एक आर्किटेक्ट हूं। उसके बिसाइड्स जब मेरा मन चाहा पेंटिंग की ओर चला गया, जब मेरा मन चाहा पोइट्री की ओर चला गया। कोई रोक टोक नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि क्रिएटिविटी को आप बंदिश में नहीं डाल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि चलो बैठ जाएं और एक कहानी तहरीर हो, नहीं। सादत हसन मंटो साहब की एक बात याद आई मुझे। उनने एक जगह तहरीर किया हुआ है कि मैं अफसाना क्यों कर लिखता हूं, और वहां वो सबको यही जवाब देते हैं कि मैं मेरी कहानियां तहरीर नहीं करता, मेरी कहानियां मुझे तहरीर करती हैं। तो जब आपका इन चीजों पे खुद ही अबूर है नहीं, तो आप ये कैसे कह सकते कि मैं इन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो जैसे यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे साथ में हमारे साथ जो
राष्ट्रपति अवार्डी भी है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। दीबा नजीर हमारे साथ है, इनसे जानना चाहेंगे कि आजकल की लड़की को कितनी लिबर्टी है। जी, आजकल की लड़कियों का मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे पूरा मैदान खुला छोड़ा, जहाँ जाना चाहा मैंने वहाँ मैं गई, और लिखने का जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो मैं अभी शॉर्ट स्टोरीज लिख रही हूँ, जहाँ मुझे सारे अप्रिशिएट करें, मेरी फैमिली भी, मेरे टीचर्स भी और मेरे फ्रेंड्स भी। तो जैसे इनका कहना है कि इनकी फैमिली की ओर से इन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला, और वहीं यहाँ पे हमारे साथ और एक मेहमान हमारे हैं, सदफ मुंशी जी है, और जो नॉर्थ टेक्सास में लिंग्विस्टिक्स पढ़ाते हैं, और इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा है इस चीज़ को, कैसे ही वो देखते हैं इस सारे चीज़ों को। जी, मुझे लगता है कि मैं इन दो जनरेशन के बीच में हूँ, तो मेरा एक और एक्सपीरियंस रहा है। मुझे नसीम शिफाई जी से, मैं उनसे सहमत हूँ कि अक्सर ये होता था कि माँ बाप बच्चों को इनकरेज नहीं करते थे जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट होता था, और यहाँ कश्मीर में वैसे भी ट्रेंड रहा है या तो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़नी है बच्चों को। आर्ट्स के फील्ड्स में वही बच्चे जाते थे, और अभी भी वैसे ही है कुछ हद तक, बहुत हद तक। आई डू नॉट एग्री विद यू टोटली कि आर्ट्स के जो फील्ड्स हैं वहाँ वही, मतलब ऐसे लगता है कि वो बच्चे वहाँ जाएंगे जो कि पिछले, मतलब जिनका मेरिट उतना अच्छा नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में, मतलब हमारी सोसाइटी को दिमाग से निकालना चाहिए कि आर्ट्स के फील्ड्स में वही बच्चे जाते हैं कि जो कि बाकी फील्ड्स में आप प्रूव नहीं कर सकते हैं खुद को। मैंने खुद स्ट्रगल की है, मतलब हमारे घर में कंजर्वेटिव माहौल रहा है, तो हमारे घर में ये रहा है कि ऐसे खुली छूट भी नहीं मिली है, तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। मुझे, मेरी बहन है, जो भी हमारे ख़ानदान की लड़कियां और हैं, तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ी है। और मुझे लगता है कि और भी कई लड़कियां ऐसी हैं आज भी जिनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो इतना फ्रीली उनको इतना इंकरेजमेंट नहीं मिलता है जो वो चाहे, खुली छूट नहीं मिलती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो अगर बात करें तो आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो स्कोप अगर हम देखें इन चीज़ों का, आर्ट्स का खासकर अगर हम बात करें, तो कहाँ आप देख रहे हैं? और जो यहाँ के जो हमारे लोग हैं जो सिर्फ अभी डॉक्टरेट या इंजीनियरिंग या अभी जो IAS KS तक अब बढ़ गया है दायरा, उससे आगे नहीं सोच पा रहे हैं, तो उनके लिए कैसे आप ये कहना चाहेंगे कि जो इसका जो दायरा है कहाँ तक है और क्या क्या वो हासिल कर सकते हैं? मुझे लगता है कि जो ये सोशल एटीट्यूड है इन चीज़ों के बारे में, इन सब्जेक्ट्स के बारे में, अगर वो चेंज हो जाए तो तभी हम उन फील्ड्स में बच्चों को भेजेंगे। जो कि ये सोसाइटी का एटीट्यूड है कुछ फील्ड्स के बारे में, कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में, कि ये बस यही सब है और बाकी कुछ नहीं है। जो भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो भी अच्छे बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, वो सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड्स में जाएंगे, ऐसा ये एटीट्यूड इनको निकालना चाहिए दिमाग में से। और किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हर फील्ड में लोग जाएं, हर एरिया में लोग जाएं, चाहे वो आर्ट्स हो, क्रिएटिव आर्ट्स हो, साइंसेज हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं बहुत सारे, उन सब में हमारा एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये तो इतने मेरिटोरियस फील्ड नहीं है, मतलब दे आर नॉट वर्थ अटेंशन। जी, जैसे यहाँ पे इख्तलाफ किया सदफ मुंशी जी ने जो ताहा कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरे और मेहमान है जहांगीर से जानना चाहूंगा कि उनका क्या रद्दमल है इस पूरे। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करूंगा और मैं रिलेशनशिप ऑफ जो कि आज़ादी है, क्योंकि जब भी हम कश्मीर के बारे में, जब भी कोई इंसान कश्मीर के बारे में सुनता है या सोचता है, तो एक अल्फाज जो है जो हर एक इंसान के जहन में आता है वो आज़ादी का है। लेकिन मैं यहाँ पे सियासी आज़ादी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, मैं आज़ादी और क्रिएटिविटी का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए और आज से 10 साल के बाद जो हमारा यूथ है उसकी जो स्टैंडिंग है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आज से 10 साल पहले का देख लीजिए। मैं अपनी ही जिंदगी की एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें पैसे दिया करते थे।
10 रुपए दिया करते थे, 20 रुपए दिया करते थे, ताकि हम इन 10-20 रुपयों का जो है इस्तेमाल करें, सही तरीके से इनका इस्तेमाल करें। हमें वो फ्रीडम नहीं दिया करते थे, और इस चीज की वजह से जो हमारा मेंटल सेटअप है वो इस तरीके से डेवलप हो गया कि हम लिमिट क्रॉस नहीं करते थे। और आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ अब देख लीजिए, वो अनलिमिटेड डिमांड्स अपने पेरेंट्स से कर लेते हैं। कोई लैपटॉप मांग लेता है, कोई टैब मांग लेता है। मुझे तो टैब का अभी कंसेप्ट भी नहीं पता है, और मेरा छोटा भाई है, वो 5-10 साल का होगा, एक छोटा कजन है मेरा, उसके पास टैब है। तो इसका मतलब ये है कि आज से 10 साल बाद मैं ये देखता हूं कि जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है, उनकी जो ये फ्रीडम है, फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन है, उसकी जो फ्रीडम रिस्ट्रिक्शन नहीं रही है, उसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा जो हमारी आने वाली जनरेशन है उस पर। यही मैं यहाँ पे नसीमा जी से पूछना चाहूंगा कि कितना मुतफिक है जो इन्होंने बात कही, तो उससे कितना मुतफिक है? नहीं, मैं तो इत्तेफाक करती हूँ। दरअसल बात यह है कि अभी तक हमारा, मैंने कहा ना, सोशल सेटअप हमारा, अगर बशारत पीर हमारे यहाँ, मिर्जा वहीद वगैरह वो बाहर चले गए, उनको पता था वहां के लोग कॉन्शियस है, वहां भिखारी नहीं बनता है जो कलमकार होता है। यहाँ सबसे पहले माँ बाप को ये होता है कि अगर पढ़ाई करके कितना कमाएगा, तो नेचुरली ये ऐसा फील्ड है, उसमें तो कुछ कमाने के मौके बहुत कम, हालांकि कहीं जाता नहीं है, आगे चल के बहुत कुछ मिलता है, लेकिन माँ बाप यही कहते हैं, अच्छा ये बन गए, ये बनोगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं, शादी कहाँ करोगे, कौन अपनी लड़की देगा, या ऐसे ही लड़की के बारे में। तो इसमें सही बात है कि बाहर जाने से पहले अभी हम इतने ये नहीं है, न हमारे पास इतने एवेन्यूज हैं कि हम बोलेंगे कोई बच्चा जाएगा सिर्फ और सिर्फ राइटर हो जाएगा और उसके बाद अच्छी कमाई भी करेगा, ऐसी बात नहीं है। ना हम इतने अभी फॉरवर्ड हैं कि हम क्या यही जरूरी है कि यहां से जाके अमेरिका चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाए और वहां फ्लरिश करे, वहां वो कमाता भी है, उसके माँ बाप भी खुश, वो इज्जत से कहते हैं, नाम लेते हैं हमारा बच्चा ये कर रहा है, अदर देन डॉक्टर और इंजीनियर और ये सब बनने के। बल्कि ये भी है कि जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी, मेरा बच्चा जब इंग्लैंड से पढ़ के आया, मुझे किसी ने पूछा कि क्या करता है, मैंने कहा नहीं, उसने ना इंजीनियर है ना डॉक्टर। फिर क्या करेगा, मतलब घबराहट जैसे, मैं कहा फिर मजदूरी करेगा, जब कुछ नहीं करे मजदूरी करेगा, तो आपकी तरह जर्नलिस्ट बनेगा। मतलब यहाँ अभी कल तक जर्नलिस्ट का जो था एक कॉन्सेप्ट था, वो था अखबार वाला वो तो जो अखबार सुबह करता है, बेचता भी है और खरीदता भी है, रद्दी खरीदने वाला और ताजा अखबार बेचने वाला, तो अखबार वाला बनेगा। फिर क्या करेगा, मैंने फिर मजदूरी करेगा, जब कुछ नहीं करेगा। इस तरह की बातें जब तक हमारे जहन से, क्योंकि हम मनी माइंडेड बहुत हैं, और यहाँ मतलब कालीन और वगैरह जो कश्मीर आर्ट्स है उसने आसमान पे पहुंचा दिया। पढ़ाई की उधर जरूरत भी नहीं थी, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो भी बहुत आगे निकल गए। तो अभी वही सेटअप है, जब तक मेंटली हम चेंज नहीं हो जाए, और यही नहीं मेंटली नहीं, जब तक इक्तिसादी हालात हमारा साथ नहीं देंगे, जब तक पता नहीं चलेगा कि चाहे उर्दू में लिखे, अंग्रेजी में लिखे, कश्मीरी में लिखे, जब तक ये बात लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचेगी, उनको पता नहीं होगा कि लिखा क्या है इसने। महजूर साहब हमारे बहुत मशहूर हो गए कि उनके पास गाने वाला साथ होता था, महमूद शायरी। तो अब सबके साथ तो नहीं होगा महमूद शायरी, इसलिए बड़ी मुश्किल से हमारे शायरों को, हमारे कलमकारों को पहचानते हैं, देखते हैं। शायद यही एक वजह हुई कि कलमकार से वजूद में आए कि कुछ नहीं तो कहीं बैठ के हम बात करें, जो आने वाली नस्लें हैं वो पुरानों की बातें सुने, जहाँ कहाँ गलत है वो रिएक्ट करें, कहाँ सही है वो उससे सीखें। तो जैसे यहाँ पे आपने सुना कि जो आज हमारे मेहमान थे उनका ये कहना था कि जरूर अब भी सीरियसली तो लिया जाना लगा है इस चीज को, लेकिन जो पहले का नजरिया था उसमें बदलाव आया है, और आने वाली जो जनरेशन है शायद वो उनको ये लिबर्टी हो कि अगर वो कलमकार कल को बनना चाहे तो वो बन सकेंगे। तो नाज़रीन, रंगे कश्मीर में आज बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com पर। तो इस प्रोग्राम का अगला एपिसोड लेकर अगले हफ्ते हम आज ही के दिन और इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आलमी समय। आदाब। बेमिसाल बेनजीर है ये कश्मीर है, ये
कश्मीर है।